Good morning, students. Today we are going to continue our chapter 3rd, that is private, public and global enterprise, and the topic is public corporation, that is also known as statutory corporation. This is second type of forms of public sector. In the last lecture we had discussed the first type, that is departmental undertaking, and in this lecture we are going to discuss the concept of public corporation, that is also known as statutory corporation. Now what is the concept of public corporation? Public corporation is one of the type of public sector. Public corporation is a body formed by special act of parliament or by central or state legislature. It is also one of the department of the government, and this is formed by special act of parliament, that is central or state legislature, and the public corporation is fully financed by government. Its powers and objectives are also defined in the act, that is the act of parliament or central or state government. Is it clear? This is also one of the department of government. In this, it is fully financed by government. And when the act is passed, it is automatically incorporated and act is passed in the parliament. If we want to change in the public corporation, it is changes only when there is change in the act. Otherwise, we cannot change according to our own wish. If there is amendment in the act, it is automatically changed. Now, for example, the examples of public corporation: Indian Airlines, Air India, SBI, State Bank of India, LIC, Life Insurance Corporation, FCI, Food Corporation of India. All these are the example of public corporation. Now, what is the concept of features of public corporation? First point is, it is created by act of parliament or central or state government. When the act is passed in the parliament, it automatically gets incorporated. Second, the power of public incorporation or statutory corporation is power, objective and limitations are defined in the act. Is it clear? It is already defined in the act that is passed by the parliament. Third one is, in the public corporation, total control of the central or state government. In the public corporation, there is fully control of the government, either it is state government or central government. Or in the case of public corporation, it has a separate legal entity. That means when the act is passed in the parliament, it automatically get incorporated. Fifth is, it is managed by a board of director, and board of director is nominated by the government. And in the case of public corporation, there are experts and professionals are the board of director, they are appointed by the government. The public corporation has its own rules or regulations of recruitment and remuneration. इसका सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि ये अपने अकॉर्डिंग रिक्रूट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड करते हैं. तो दैट मीन्स कि ये प्रोफेशनल स्टाफ को, एक्सपर्ट्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपॉइंट कर सकते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी. अब गवर्नमेंट को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की क्या नीड है, किस तरह के प्रोफेशनल्स, किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, ये पूरी तरह से हर डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता. बट पब्लिक कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ये एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं. सेवेंथ इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. यहाँ पे फुल फ्रीडम है, ये अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने वर्क को, यहाँ पे फुल फ्रीडम है, अपने अकॉर्डिंग अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं. Service to general public. The main motive of public corporation is to provide services to general public. Its main motive is to provide the services to public. Ninth is accountable to parliament. The public corporation is directly accountable to parliament or state legislature, and its annual report are submit in the annual working reports are submit in the parliament. 10th, their accounts are audited by the comptroller and auditor general. जो अकाउंट ये प्रिपेयर करते हैं, जो अपनी ये रिपोर्ट को बनाते हैं, इनका जो बजट है, जो एक्सपेंसेस है, उसको ऑडिट कराया जाता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से. वो उसको पूरी तरह से ऑडिटिंग का काम करते हैं. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फीचर्स. दैट मीन्स कि पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है,
इसको गवर्नमेंट को नहीं बनाना। ये क्या है, जैसे ही पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑटोमेटिकली हमारी इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे इनके पास ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, ये अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अपने जो इनकी पावर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है इनके पास है कि ये अपनी वर्किंग को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी अपने वर्क में, रूल्स रेगुलेशंस में नहीं। रूल्स रेगुलेशंस में तो चेंजेस तभी होंगे जब पार्लियामेंट के एक्ट में चेंज होंगे। जो चेंजेस है दैट मीन्स जो इनका वर्किंग सिस्टम है ये उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था कि पूरी तरह से मैनेज करने का काम, पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट का था, बट यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इनके पास थोड़ा सा फ्रीडम है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम है। नाउ नेक्स्ट इज द मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, दैट मीन्स इनके पास फ्रीडम है, ये अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इनके पास फुल फ्रीडम है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, जो ये ऑपरेशन दैट मीन्स जो इनकी वर्किंग है ये उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है क्विक डिसीजन। पब्लिक कॉर्पोरेशन का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है कि क्विक डिसीजन। पब्लिक कॉर्पोरेशन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो थोड़ा सा क्विक लिए जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट लिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इनको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसीजर है, ये अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। दैट मीन्स जो भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने डिसीजन ले सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इनको थोड़ा सा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से थोड़ा सा इनके पास राइट है कि ये डिसीजन को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद सर्विस मोटिव, जो मेन मोटिव है पब्लिक कॉर्पोरेशन का वो क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कराना, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कराना। जैसे देख रहे हो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। LIC लाइफ इनकॉर्पोरेशन है, ये उनको रिस्क प्रोटेक्ट कर रही है रिस्क से। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। दैट मीन्स इनका जो मेन मोटिव है वो सर्विस देना है। एफिशिएंट स्टाफ, ये हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन का एक वन ऑफ द बेस्ट मेरिट है कि एफिशिएंट स्टाफ, क्योंकि अभी हमने इसकी फीचर में पढ़ा था कि स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय, अभी हमने यहाँ पे ये पॉइंट देखो किस पॉइंट में डिस्कस किया था, ऑन रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ। दैट मीन्स कि इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, वो सिविल सर्वेंट थे, दैट मीन्स गवर्नमेंट ही उनका सिलेक्शन करती थी, बट यहाँ पर ये स्टाफ को अपने अकॉर्डिंग अपॉइंट कर सकते हैं। जब ये अपने अकॉर्डिंग अपॉइंट करेंगे, इनकी नीड क्या है, इनको किस तरह का स्टाफ चाहिए, तो वो इनको ज्यादा क्लियर है। तो दैट मीन्स जो ये स्टाफ अपॉइंट करेंगे वो बिल्कुल एफिशिएंट स्टाफ होगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन में जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाएगा, जिनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो उस तरह से इन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। इसका बेनिफिट हमारे बिजनेस को भी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जब प्रोफेशनल्स होंगे, जब एक्सपर्ट स्टाफ होगा, तो हमारी जो कॉर्पोरेशन है जो उसकी वर्किंग भी बेटर होगी। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन? ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में हमने पढ़ा था कि इनके पास फुल फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बट कह रहे कि इट इज जस्ट ऑन पेपर वर्क, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। हमने कहा था यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है किसी तरह का, बट ये सिर्फ पेपर वर्क पे है। कहने के लिए है कि एक्ट पास हो गया तो इनकी वर्किंग ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्रीडम है, बट रियल में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक पेपर वर्क पे, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का, सबका, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है, हर छोटी छोटी चीज में इंटरफेरेंस करना। अभी हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पे कि पूरा डिसीजन ले सकते हैं, बट ये सब चीजें सिर्फ पेपर वर्क पे है, बट रियली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट का पूरी तरह से इंटरफेरेंस रहता है। सेकेंड इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव हमने ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी पढ़ा था। लैक ऑफ इनिशिएटिव क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉइज अपना इनिशिएटिव नहीं देते, फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड्स और जो एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स है वहाँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है नहीं। इनकी जो सैलरी है, सब कुछ चीजें पहले से फिक्स है। इनको पता है कि एक्स्ट्रा वर्क करने का, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड इज रिजिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजिड है। जैसे जो भी पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो चीजें, जो रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड कर दिए गए हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। एकदम रिजिड है। अगर इसमें
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में अगर अमेंडमेंट्स होंगी तभी यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन में अमेंडमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, सारी चीजें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में डिसाइड होती है। अगर अमेंडमेंट वहां होंगे तभी हो सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी तरह के कोई अमेंडमेंट्स, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस, ऑब्वियसली यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस है, ये क्या करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं अपनी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए। कोई काम करना है तो उसके लिए उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेना, ये सारी चीजें हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन में होती है। नाउ सुटेबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, वेयर इट इज सुटेबल पब्लिक कॉर्पोरेशन, वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपली, जहां पे मोनोपली रिक्वायर्ड हो वहां पर ये सुटेबल है। सेकेंड इज वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर डिफाइंड बाय एक्ट, जहां पे हमें स्पेशल पावर और ऑब्जेक्टिव्स जो एक्ट डिफाइन कर रहा है, जहां पर ये जरूरत हो वहां पे पब्लिक कॉर्पोरेशन हमारा सुटेबल है। थर्ड वन इज वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फॉर गवर्नमेंट, जहां पर हमें लगे कि हमें ग्रांट रेगुलर मिलता रहे गवर्नमेंट से, तो वहां के लिए हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन सुटेबल है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट, वेरी सिंपल कंसेप्ट। पार्लियामेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज पास्ड बाय सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. Its power objectives are defined by central government or state governments. In the public corporation, we cannot change according to our own wish. If there is change in the act of parliament, there is amendments in the acts of parliament, it is automatically changed. Is it clear? इसमें पूरी की पूरी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के पास सबमिट होगी, ये अकाउंटेबल भी वहीं पार्लियामेंट में होंगे. दैट मीन्स ऑल वर्किंग्स आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट. इज इट क्लियर? अब हम इसमें एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे. केस स्टडी क्या है हमारी? With enhancement of Life Insurance Act 1956, an autonomous body, Life Insurance Corporation of India, was formed. The act defines its powers, duties and functions. It has a separate legal entity. It is fully owned by government. It has independent financial policy and can raise funds by borrowing from public and government. However, it is not subject to any budgetary accounting for audit control like railway. Its annual reports are present in Parliament every year. Name the type of public sector enterprises referred in the above case. क्या है इसमें? पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन. नेम द एक्ट अंडर विच इट इज फॉर्म्ड. लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956. यहाँ पे LIC की बात की गई है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस एक्ट कौन सा है? 1956. इसकी फर्स्ट लाइन में ही बताया था. थर्ड इज नेम एनी अदर स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन. किसी का भी आप बता सकते हो. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन है, एयर इंडिया है, किसी का भी एक का नाम बता सकते हो. नेक्स्ट, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन मेंशन्ड अबव. कोई भी 2 फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, दैट मीन्स कि ये फाइनेंस को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, इस तरह से केस स्टडीज आती हैं. तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन के ऊपर केस स्टडी थी. LIC का एक्ट बता दिया गया 1956. तो ये कंसेप्ट आपको जब पूरी तरह से पता होगा तभी आप केस स्टडी को पढ़ पाओगे. अब आप इसमें बताया था ना कि इट इज एक्ट बाय पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या पब्लिक कॉर्पोरेशन है. पूरी तरह से जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको केस स्टडी क्लियर हो जाएगी. सो this is the second point of the types of public sector, that is public corporation. In the next lecture we discuss the government company, that is third type of public sector. Hope so this concept is clear to everyone. Thank you.